This conference will now be recorded. मेक दिस सेशंस इंटरेक्टिव ऑन ये सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए। जो जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे मुझे बोलना, क्या समझ नहीं पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है। रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं क्लास के बाद दिखा दूंगा कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो वो स्टेप फॉलो करना। आप सिंपली 10-15 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज वेरी मच इजी, but if you get any problem, according to the set, all the supporting member is there to help you. Okay, so let's start stat. So what is the meaning of stat? फर्स्ट ये बताओ कि स्टैट से हम लोग क्या कर सकते हैं। हम सिविल डिपार्टमेंट का जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, स्टैट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पर? कोई आइडिया है, बेसिक आइडिया किसी के पास? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, क्या किया जा सकता है स्टैट के थ्रू? तनु said you are not audible, sir. Can everyone hear my voice? If there is a problem, okay, wait. Akash design structural project. Amol says structural analysis. So STAT acronym is structural analysis and design. We can analysis and also design the model or design whatever we. All the students have asked if you all get my voice or not properly. If my voice is clear, please type yes. So if there is a problem, please re-enter with the link. If you not getting my voice, the network problem is sometimes not very much strong, so you not getting my voice. So please re-enter with the link. You can surely getting my voice. Okay. So structural analysis and design. Whatever structure you can think of, you can analysis with this software, and also we can help this with the help this software we can design also. Design means multi-material design. We can put steel material, we can put the concrete material details. We have whatever comes up with the upcoming sessions, we can discuss very much details. Okay, but firstly we have to understand what stat can provide and how can we use this the software to help our analysis and help our design portions. So first टेल मी वन थिंग, ये बताओ कि स्टैट जो है ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आया है? कौन सा कंपनी इसका मतलब फादर कंपनी है जो इसको प्रोड्यूस किया है? कोई बता सकता है?
Borun Kumar Das says Autodesk. Please unmute yourself. You can unmute yourself. Don't hesitate to talk. You can unmute yourself. You can talk with me directly. Is the Autodesk is the foundation of the StatPro? Autodesk provide CAD software, computer design and drafting software. Okay. So because Kumar se Bentley system. Autodesk is another company which provide different software to create designing portions, to create analysis part also. There is bunch of software is there. CAD is there, AutoCAD is there, Revit is there, there is 3D Max is there, different software is there. But these kinds of analysis software, uh, StatPro is in the 1997 there is a company called Research Foundation. So this company, International Research Foundation companies, developed this software, and later on the uh, Bentley software is bought this all the shares and develop the software portion. So you can say the Bentley is the foundation of StatPro. Okay, so move on the other sections. What can we do with this software? Okay, so there is तुम लोग बोले थे कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग डिजाइन और एनालिसिस कर सकते। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो देयर आर बेसिकली थ्री डिफरेंट पार्ट्स which includes the input section, the output section and design section. Okay, first we have to put the input in the software. So what kinds the input we have to put in the software? So there is a input portion contains of structural part. Structure means we have to design the structure, we have to create the structure. Whatever structure we have to analysis or design, we have to create this structure within the software. So there is a structure portion. Suppose we have one building to create, one home or home portion to create, or any kinds of structure analysis we have to create there. So we have to build this structure in the software part. So there is a structural portion in the input section, and there we have to mention all types of supports, all types of load which are consuming in these structural portions. And if you see what the stat is doing here, stat is doing here in the analysis part of whatever we put in the input to the output section. जो हम लोग पुट कर रहे इनपुट में स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को दे रहे सपोर्ट, डिफरेंट लोड्स पुट कर रहे हैं, वहां पर कैसे पुट कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो वहां पर क्या होता है, और इनपुट से इफ यू पुट द इनपुट, द वी हैव टू गेट द आउटपुट सेक्शन, एंड आउटपुट में कंज्यूम होता है कि उसमें रिएक्शन क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, फोर्स क्या आ रहा है, स्टेटस क्या पड़ रहा है, उसके बेसिस से क्या होता है, एनालिसिस होता है। सो stat क्या करता है, यहाँ पर stat do the analysis portions in here in between the input and output. Whatever the input we put in this software, it will produce the output, and according to our output we can design the portion. And designing is the multi-material design, so we can put the different material, concrete material, steel material. According to our designing file we can create a project, or we can develop a project, and according to this project we can build actual structure in the actual field section. Okay, so there is a input portion, there is a output portion, and there is a designing portion. We have to work on this section. So first we have to work on this input section.
how can we build this structure, how can we build these supports, any kinds of whatever we try to build in this software. Okay, so move on this software portion. Software is look like this. If you double click on this software will come up with this page. This is the starting page. How can we install the software? Later on we can discuss. There is a simple process. If you see this process, you can easily build up, install with your own. Easy process है software को install करने के लिए. Okay, so there is a recent file section is here. Different whatever you create previously, all the file is showing in here, the recent portion, and there is a project tasks there. Use this section, you can open new project. Project means whatever we try to build within this section, within this stat pro, it's called a new project or project section. Okay, and previously whatever the portion is here, you can open with open project. There is a bunch of setup is there. Okay, suppose I am creating a new project. How can we create a new project? Simply you can click on here and create a new project from there, or you can go to the file section and click the new. Okay, so suppose I am come up, click in this section. तो इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद हम लोग के पास डिफाइन करना है कि कौन से तरीके से तुम्हारा मॉडल बिल्डअप होगा. स्पेस में होगा, प्लेन में होगा, क्या फ्लोर में हो रहा है, और क्या स्ट्रस यूज कर रहे हो, कौन से तरीके का मेंबर तुम चूज कर रहे हो, कौन से तरीके का स्ट्रक्चर तुम चूज करने का कोशिश कर रहे हो वहां पर क्रिएट करने के लिए. समझो कि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं एक 3D मॉडल, तो हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए. स्पेस हमें डिफरेंट मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस देगा, मतलब स्पेस है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए हमें स्पेस यूज करना है. समझो कि कोई प्लेन के ऊपर डिफाइन कर, सिर्फ एक्स वाई होगा कि एक्स जेड होगा कि वाई जेड होगा, उसके लिए तुम्हें डिफाइन करना है प्लेन. उसी तरीके से फ्लोर आता है, फ्लोर सिर्फ एक्स वाई में होता है. ठीक है, ये ट्रस्ट भी उसी तरीके से डिफाइन होता है. कैसे इसको डिफाइन करते हैं उसके बाद में आएगा, बाद में जब फिर से शुरू करके उसके बाद डिफाइन करेंगे कौन से तरीके के लिए कौन से चूज करना होता है. सपोज हम डिफाइन करना चाहते हैं कि एक 3D मॉडल का के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, सपोज हम तो क्या ले रहे हैं? स्पेस. ओके, उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर जो हम लोग whatever we have to build there, we have to select the unit section here. Okay, so there are two different unit we have to choose. One is length unit and another is force unit. So here I am choosing the SI unit. So there is a meter and kilonewton. Force unit is kilonewton is fixed here. Okay, if you have to change according to your work, you can change from there also, but SI unit is very much a simplistic way to calculate all the portion, all the analysis part here. Okay, and then we can put the file name section here. We have to give the name according to our project. Whatever you can create, you can give the name here. Suppose I am going to give a name as a okay. So then there is a part called location, where we can put the project in the location folder. We can select from here. Suppose जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे बता सकते हो कहाँ पे स्टोर होगा? वो तुम तुम्हारे तरीके से तुम डिसाइड कर सकते हो लोकेशन पाथ चूज करके. ठीक है, लोकेशन पाथ कैसे चूज करते हैं? लोकेशन पाथ चूज करते टू यूज दिस ब्राउज सेक्शन. If you click on this browse section, the select from directory is open. Whatever directory you have to choose. Suppose I am put the file in the desktop, simply desktop. Okay, so this file will put in the desktop.
section. You can find it the file in from the desktop portion, or you can select whatever folder you have to put there. Suppose in the C drive, suppose there is a computer section, there is a C drive, or different drive is there. So whatever drive you have to use, and in this folder you have to choose the folder. Okay, suppose in the software portion you have to choose, so choose there and okay. So D drive and software folder is contain this file CIT name. Okay, or you can create the folder also from here. How can we create the folder from here? Look, suppose I'm not choosing the folder or creating the folder. Suppose there is a no folder, समझो कि उसमें कोई फोल्डर नहीं है, तो तुम सिर्फ कैसे कंटेंट करोगे उस फाइल को वहां पर? तो फोल्डर वाइज तुम कंटेंट करना चाह रहे हो, तो क्या करना पड़ता है, उसमें तुम जाके फोल्डर को क्रिएट करके फिर से आओगे, ऐसे नहीं है, तुम यहाँ से ही इसको फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। सपोज कि डेस्कटॉप में जब क्रिएट कर रहे हो, ओके कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, वो प्रोजेक्ट का सिर्फ आ रहा है, उसमें फाइल आ रहा है। समझो कि फोल्डर के तरीके से रखना चाहते हो, तो समझो कि इसका ही नेम दे सकते हो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो क्या होगा, इसमें डेस्कटॉप में इसी नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, और उसी फोल्डर के थ्रू वो क्या होगा, वो वहां पर सेव हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट करोगे, क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक डू यू वांट टू क्रिएट इट, मतलब उसमें फोल्डर नहीं है, तुम क्या फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हो, यस करके करोगे तो क्या होगा, उसी फोल्डर में डेस्कटॉप में CIT करके फोल्डर क्रिएट हो चुका है वहां पर। ठीक है, तुम्हें फिर फोल्डर क्रिएट करके उसको पुट करना है, ऐसा नहीं। अब तुम किसका सेक्शन यूज करोगे एनालिसिस करने के लिए, वो तुम बोल सकते हो। समझो कि बीम एंड कॉलम के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी पोर्शन को क्लिक करके फिनिश कर दे। फिनिश करने से क्या होता है, फिनिश करने से हमारे पास सॉफ्टवेयर का पार्ट ओपन होता है, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट डालेंगे, कौन से स्ट्रक्चर पुट करना होता है। ठीक है, तो क्या क्या है पहले बता देता हूँ, इसमें किसके पास क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग क्या देखे, कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि इसको ये करो, मिनिमाइज करो, इसको भी समझो, मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो CIT का फोल्डर क्रिएट करके हो चुका है, इसी में तुम तुम्हारा फाइल पाओगे। बाद में जब ढूंढोगे, किसी को सेंड करना है तो इसी के ओपन करके फाइल करो, वहां पर आ जाओगे। तो देखो इसमें क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे क्या आता है, अपीयरेंस में क्या है इसके पास। तो ऊपर का जो सेक्शन दिया गया है, ठीक है, ऊपर का जो सेक्शन जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, टूल, सेक्शन, इसको मेनू बार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन, फंक्शन एंड कमेंट है इसमें, जिसके चूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेनू बार के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन चूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। समझो कि किसी को पुट करना है, सेक्शन पुट करना है, सेक्शन को डिफाइन करना है, कैसा सेक्शन लिया गया है, तो कैसे सिलेक्ट करोगे, क्या नहीं है उसमें पुट होगा कैसे, तो ये सब मेनू बार के थ्रू डिफाइन हो सकता है। बट और भी एक सेक्शन दिया गया है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टूल, टूल सेक्शन इसका। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल मतलब फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। क्या चीज है, कैसे यूज किया जाता है, जब यूज करेंगे तो देखना सिंपल प्रोसेस से ही समझ में आ जाएगा, क्या है, क्या कहाँ से क्या आता है क्या नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस सेक्शन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ग्रिड का सेक्शन दिख रहा है, एक ग्राफ का सेक्शन दिख रहा है, जिसके थ्रू हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। बट ये जो सेक्शन है, इसमें जो ये सेक्शन है वो है टूल पैनल, मतलब फंक्शन। हम लोग जो फंक्शन यूज करके यहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे काम करना है, क्रिएट कैसे करना है, ये सब इस फंक्शन के थ्रू होता है। और ये क्या है, टूल पैनल के अंदर वो फंक्शन को डिफाइन किया गया है, किसके बाद क्या चीज यूज करेंगे हम लोग। इसमें देखना कि क्या चीज दिया गया है, इस पे देखना एक साइड में
एक सेक्शन लिखा गया है, एक सेक्शन सेटअप का सेक्शन, एक जियोमेट्री का सेक्शन, एक जनरल का सेक्शन, और इसके बगल में एक सब सेक्शन, ठीक है, टूल पैनल में। तो समझो कि सेटअप, तो सेटअप में क्या है, जॉब, तो जॉब में क्या है, जॉब में समझो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो कौन से जॉब के लिए होगा, कौन से क्लाइंट के लिए होगा, और नंबर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का तुम नंबर पुट करके यहाँ पर उसको सेव करके रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, हर वक्त याद रखना फंक्शन जो चूज करना है कि इसके बाद क्या करोगे, वो सब कुछ होता है अपसाइड डाउन, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तक चूज करना होता है। तो सेटअप जब पुट हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा, जियोमेट्रिकल सेक्शन। जियोमेट्री में क्या आएगा, जियोमेट्री में स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है। जियोमेट्री को कौन से सेक्शन के लिए यूज करेंगे, जियोमेट्री को सेक्शन के लिए यूज करेंगे ये जो स्ट्रक्चर को जो पुट करना है इनपुट में, हमें जो स्ट्रक्चर के थ्रू एनालिसिस करना है, उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। तो कहाँ पे क्रिएट होगा वो होगा वो जियोमेट्रिकल सेक्शन। अब जियोमेट्रिकल सेक्शन को यूज करके हम लोग क्या कैसे स्ट्रक्चर को बनाएंगे वो समझो कि डिफाइन करना है। तो समझो कि जियोमेट्रिकल सेक्शन में क्या आ रहा है, ग्रिड का सेक्शन आ रहा है। अब ग्रिड का सेक्शन के थ्रू तुम ड्रॉ करना मतलब स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो, पर क्या होता है ग्रिड का सेक्शन में बहुत कुछ कैलकुलेशन करके बहुत कुछ असाइन करने के बाद आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको पुट करने का कोशिश करेंगे। अब डायरेक्टली कैसे पुट करते हैं, तो ग्रिड का सेक्शन को क्रॉस करेंगे तो एक सेक्शन दिखेगा। अब इस सेक्शन में क्या चीज है वो पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें इसमें स्ट्रक्चर कैसे पुट करते, स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते वो तुम डिफाइन कर सकते हो। तो पहले एक चीज को मतलब वी हैव टू लुक आफ्टर दिस एक्स वाई एंड जेड प्लेन, ओके, द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड प्लेन। तो कैसे हम लोग इसमें इस ओरिएंटेशन को देखेंगे, पहले देखो कि ए ओरिएंटेशन एक्स वाई जेड प्लेन जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि कैड में यूज किए थे तो देखे थे कि जेड प्लेन कहाँ होता है, तो उस ओरिएंटेशन के थ्रू ये नहीं है, एक डिफरेंट टाइप का ओरिएंटेशन है जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि समझो कि 3D डायमेंशन में जो समझो कि इसमें इस तरफ और इस तरफ जो प्लेन है, समझो एक प्लेन डिफाइन कर रहे हैं। तो समझो कि हम लोग इस तरफ x डिफाइन करते हैं, इस तरफ y डिफाइन करते हैं और इस तरफ z डिफाइन करते हैं, ठीक है, हाइट के लिए। तो एक्स वाई प्लेन है और z हाइट में है, पर ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो उस तरफ से नहीं है। x के थ्रू पैरेलल है, पर y का सेक्शन जो है वो यहाँ पर हाइट के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें हाइट कहाँ से यूज होता है, ये हाइट दिया जाता है z जहां पे है उसमें उसका लिए हाइट पुट होता है। यू हैव टू क्रिएट द हाइट, द समझो कि देयर इज ए फ्लोर सेक्शन and you have to define the floor as a 3 meter height. So we have to calculate this height as along with the y section, y coordinate section. तो यहाँ पर y है इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए क्या है, इसके लिए यहाँ पर x x x के पैरेलली है यहाँ पर। इसको हम लोग देखे थे कैट जो लोग यूज किए थे, कैट के थ्रू तुम जब डिफाइन करोगे तो एक्स वाई जेड इस तरह से रहेगा, जेड हमेशा ऊपर में रहता है तो उसके हाइट के लिए यूज होता है। पर यहाँ पर हाइट के लिए जो यूज होगा वो हर वक्त कहाँ किसके लिए यूज होगा, वाई के लिए यूज होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल एक्सिस, ठीक है, ग्लोबल वाई एक्सिस, ग्लोबल एक्स एक्सिस, ग्लोबल जेड एक्सिस, यहाँ पर बोला जाता है। दो एक्सिस से हम लोग काम करते हैं, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल जो यहाँ पर डिफाइन हुआ है उसी को ही हम लोग ग्लोबल एक्सिस बोलते हैं, और एक लोकल एक्सिस आता है। लोकल एक्सिस कैसे आता है वो जब प्रोसीड्यूर करेंगे, जब यूज करेंगे लोकल एक्सिस को तो डिफरेंट तुम अपने से ही समझ जाओगे कि ग्लोबल एक्सिस क्या है, इसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए लोकल एक्सिस क्या है, ठीक है। तो देखो
समझो कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, एक सेक्शन डिफाइन करना है। कैसे सेक्शन डिफाइन करना है? समझो कि हमें एक सिंपल सा केस लेते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफाइन करते हैं। सिंपल सा केस क्या है? समझो कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका सपोर्ट दिया गया है और उसका एक 6.5 मीटर लॉन्ग एक बीम है, कैंटिलीवर बीम 6.5 मीटर लॉन्ग है। इसमें क्या यूज हो रहा है? इसमें समझो कि फोर्स पड़ रहा है, यूडीएल पड़ रहा है, यूडीएल पड़ रहा है। यूडीएल क्या है यहाँ पर? यूडीएल है 10 है, ठीक है। तो 6.5 मीटर लॉन्ग जो बीम क्रिएट करना है यहाँ पर, कैंटिलीवर जो क्रिएट करना है, कैंटिलीवर बीम क्रिएट करना है, उसको क्या करते हैं? जियोमेट्री में पुट करेंगे। तो जियोमेट्री में कैसे उसको पुट करेंगे, ठीक है, 6.5 मीटर लॉन्ग को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसमें। तो डिफाइन कैसे करेंगे? उसके लिए क्रिएट करना होता है। अब क्रिएट कैसे करना होता है? क्रिएट करने के लिए पहले जो क्या क्रिएट करते हैं 6.5 मीटर के लिए, पहले उसको नोट को डिफाइन करना होता है। अब नोट कहाँ पे डिफाइन करोगे? समझो कि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स में डायरेक्शन दिया गया है, इसमें डायरेक्शन तुम पुट कर सकते हो, वाई में क्या पुट कर सकते हो, वाई में डायरेक्शन पुट कर, किसके लिए? जो फास्ट नोट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। समझो मैं पुट कर रहा हूँ 0, तो 0 करके इंटर दबाओगा तो क्या होगा? 0 0 0 सेक्शन में एक पॉइंट क्रिएट होगा, ठीक है, एक पॉइंट आ रहा है। अब इस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? हम लोग डिफाइन करेंगे वो जो बीम का सेक्शन है किस तरफ से तुम क्रिएट करना चाहते हो। समझो कि वाई डायरेक्शन में क्रिएट करना चाहते हो, तो वाई डायरेक्शन में क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करोगे? नेक्स्ट तुम यहाँ पर नोट का लिए तुम पुट कर सकते हो वाई डायरेक्शन में कितना दूर जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। तो बीम के सेक्शन के लिए फास्ट पॉइंट है कहाँ पे? फास्ट पॉइंट है 0 0 सेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा? वाई डायरेक्शन में जाओगे तो कौन से लिए क्या पुट करोगे यहाँ पे? समझो कि उसमें हम लोग जो डिफाइन करना चाहते हैं वो क्या है? 6.5 मीटर लॉन्ग। अब 6.5 मीटर लॉन्ग जो है वो कौन से एक्सिस में हो रहा है, पहले उसको डिफाइन करना होगा। अब कैसे डिफाइन करोगे? पॉइंट के थ्रू डिफाइन कर दो, नोट को क्रिएट कर दो। एक नोट से दूसरा नोट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 6.5। अब 6.5 जो डालना चाहते हो वो कौन से डायरेक्शन में होगा, कैसे पुट करोगे? ये तुम यहाँ पर इसका सेक्शन यूज कर सकते हो। पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नोट सेक्शन, इसको क्या करना होता है? इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब सिलेक्शन कैसे करोगे? सिलेक्शन करने के लिए एक सिलेक्शन पैनल है यहाँ, ठीक है। अब इसको सिलेक्शन करने के लिए क्या 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 दिया गया है? नोट कर्सर दिया गया है, बीम कर्सर दिया गया है, प्लेट कर्सर दिया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट कर्सर इज यूजिंग हियर फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। तो प्लेट कर्सर से तुम नोट को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, बीम कर्सर से नोट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना होगा? नोट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा नोट कर्सर के थ्रू सिलेक्शन करने के लिए। तो नोट कर्सर के थ्रू जब यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो क्या आता है? नोट कर्सर का सिलेक्शन हो चुका है, देखो नोट के लिए एक पॉइंट दिखाएगा उसमें, मतलब नोट कर्सर सिलेक्टेड है। अब तुम इसमें क्लिक करो, क्लिक करोगे तो क्या होगा? वो पोर्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको क्या कर सकते हो? इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। बात तुम यार इसको इसमें यूज करके भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से होगा। समझो कि एक्स डायरेक्शन में उसके लिए 6.5 डिस्टेंस ले रहा है, तो एक्स में पुट कर देना 6.5, वहां पर क्रिएट हो जाएगा। या और भी क्या कर सकते हो? कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हो, तो क्या होगा? वो पॉइंट के लिए कहाँ पे पुट करना है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे सिलेक्टेड होगा वो तुम डिफाइन कर सकते हो। एक्स में होगा तो एक्स में सिलेक्ट कर सकते हो, वाई में होगा तो वाई में सिलेक्ट कर सकते हो, जेड में होगा तो जेड में सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन डिफाइन इट। ओके, सो हमारा कहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग? एक्स डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे, तो 6.5 दे दो यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें तुम इस तरफ क्रिएट करना चाहते हो तो इसमें क्या है, इसमें इस 0 0 सेक्शन में हो तो माइनस सिलेक्ट करोगे तो इस तरफ क्रिएट होगा, प्लस सिलेक्ट करोगे तो इस तरफ सिलेक्ट होगा, वो क्रिएट होगा वो पॉइंट। अब जेड में भी एक ही चीज है, वाई में भी एक ही चीज है। ऊपर में क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें होगा क्योंकि स्पेस सिलेक्ट किए हो वाई डायरेक्शन में, तो इसमें तुम डिफाइन कर सकते हो। अब देखो समझो कि प्लस में ही जा रहे हैं 6.5, ठीक है। अब ओके कर देना तो क्या होगा? एक इस तरफ एक सेक्शन है
और इस तरफ एक सेक्शन है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या देना है, इसको दो नोड सिलेक्ट हो चुका है, उसमें क्या जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्या बोला गया है, एक बीम है वहां पर, तो उसमें क्या होगा, दो नोड के थ्रू एक बीम को क्रिएट करना है। अब बीम को क्रिएट करने के लिए क्या डिफाइन करना होगा, यहाँ पर बीम का सेक्शन डिफाइन करना होगा। अब बीम का सेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, इजीली क्या होता है, यहाँ पर जो फंक्शनल टूलबार होता है इसमें देखना कि लेफ्ट हैंड साइड में एक दिया गया है एड बीम पोर्शन सिलेक्शन करने के लिए दिया गया है, मतलब उसमें ऐड कर सकते हो, दो पॉइंट क्रिएट कर चुके हो, दो नोट क्रिएट कर चुके हो, उसमें एक अब बीम का पोर्शन ऐड होगा, जियोमेट्रिकल पोर्शन ऐड होगा, तो उसमें बीम का सेक्शन क्रिएट कर सकते हो इसमें, इस फंक्शन का यूज करके, ऐड बीम सेक्शन यूज करके। अब ऐड बीम सेक्शन में जाओगे तो बीम का सेक्शन यूज होगा, तो क्या करते हैं, इस नोट को सिलेक्ट करते हैं और इस नोट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि इसका डिस्टेंस 6.5 है, कैसे समझेंगे, क्योंकि हम लोग 6.5 ही लिए थे, तो वो बीम का सेक्शन 6.5 ही हुआ है। और तुम कैसे समझ सकते हो, समझो कि देखो इसके ऊपर में ही ये क्या है, ये व्यू का सेक्शन। ठीक है, हमारा जो व्यू है आइसोमेट्रिक व्यू से आता है, मतलब हम जो इसको देख रहे हैं आइसोमेट्रिक तरीके से देख रहे हैं, मतलब इस साइड से देख रहे हैं, तो आइसोमेट्रिक व्यू 3D में जो क्रिएट हो रहा है आइसोमेट्रिक व्यू से आ रहा है। अब तुम समझो कि प्लस एक्स से देखना चाहते हो, अब प्लस एक्स क्रिएट करोगे तो क्या होगा, एक्स तरीके का व्यू होगा, मतलब इस साइड से देखना चाहते हो तो इस साइड का व्यू वहां पर दिख रहा है। आप यहाँ से तुम यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हो डायमेंशन, नोट टू नोट डायमेंशन भी डिस्प्लेस कर सकते हो इसमें से। समझो कि इसको क्रिएट करते हैं, इसको 6.5। ठीक है, अब 6.5 इसमें क्या हुआ है, इसमें सिर्फ जियोमेट्रिकल पोर्शन डिफाइन हुआ है। ठीक है, अब जियोमेट्रिकल पोर्शन सिर्फ इनपुट में क्या पुट कर रहे हो, इनपुट में हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, इनपुट में एक स्ट्रक्चर को पुट किया। ठीक है, अब उसके लिए क्या पुट करना होगा, उसके लिए सपोर्ट पुट करना होगा और उसके लिए लोड पुट करना होगा। अब लोड और सपोर्ट उसमें क्या है, तो कैंटिलीवर जो बीम है उसमें फिक्स सपोर्ट आता है। ठीक है, इस तरफ से फिक्स सपोर्ट आता है। अब फिक्स सपोर्ट क्या है, पिन सपोर्ट क्या है, रोलर सपोर्ट क्या है, देखेंगे क्लास जो कंटिन्यू होगा एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज कर सकते, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते, क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर लेके पहले से लास्ट तक डिफाइन करेंगे कैसे क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, क्या स्ट्रक्चर को डिफाइन कर चुके हो, अब क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर सपोर्ट देना होगा और लोड जो पड़ रहा है, क्या लोड पड़ रहा है उसको डिफाइन करना होगा। तो कैसे हम लोग किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो डिफाइन करने के लिए हमें पास क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस प्रोसेस हम क्या डिस्कस किए थे कि अपसाइड डाउन फॉलो करना। ठीक है, अब अपसाइड डाउन में क्या बोलते हैं, सेटअप, सेटअप तुम दे सकते हो उसमें जो जॉब का टाइटल है उसको पेज को फिलअप करके। उसके बाद जियोमेट्री, जियोमेट्री में पुट कर चुके हो 6.5 डिस्टेंस एक स्ट्रक्चर। और उसके बाद जनरल में जाओगे तो देखना कि प्रॉपर्टीज देना पड़ता है और सपोर्ट देना पड़ता है। प्रॉपर्टीज मतलब वो जो बीम जो है, बीम का विड्थ एंड डेप्थ क्या है। ठीक है, कौन से लिए बीम जो पुट कर रहे हो, इसको क्या हो रहा है, एक जनरली एक क्या पुट किया गया है, जनरली एक स्ट्रक्चर पुट किया गया है। अब स्ट्रक्चर के थ्रू हमने डिफाइन करना है वो जो बीम आ रहा है और वो जो सेक्शन आ रहा है उसके लिए डेप्थ जो प्रॉपर्टीज ऐड होगा वो क्या है, उसके लिए वो तुम प्रॉपर्टीज सेक्शन से डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, सबसेक्शन, सबसेक्शन में भी हम लोग क्या फॉलो करेंगे, अपसाइड डाउन फॉलो करेंगे। तो पहले क्या फॉलो करते हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज को पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज को ऐड करना पड़ता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब उसमें बोल नहीं सकते कि ये इतना चौड़ा है, इतना बड़ा है, इसमें लेंथ, इसमें सिर्फ एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर पुट किया गया है। अब उसके स्ट्रक्चर में हम लोग क्या ऐड करेंगे, प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। अब प्रॉपर्टीज में क्या आता है, प्रॉपर्टीज में सेक्शन पुट करते हैं, उसके लिए कौन से लिए उसका डेप्थ होगा, विड्थ होगा, कैसा चीज है वहां पर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में उसका सेक्शन के लिए उसको पहले क्या किया जाता है, उस प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है, कौन से तरीके से प्रॉपर्टीज पुट होगा उस सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके असाइन किया जाता है दो सेक्शन, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करो पहले, क्रिएट करो, क्रिएशन सेक्शन है, और उसके बाद असाइन करो।
तो डिफाइनिंग सेक्शन में जो इसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर भी बदल चुका है। तो इसमें देखना प्रॉपर्टी सेक्शन, तो सेक्शन को क्या करते हैं, सेक्शन को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइन सेक्शन में क्लिक करके डिफाइन किया जाता है। अब डिफाइन करोगे तो उसमें जो बीम है, बीम का सेक्शन कैसे तरीके से आएगा, सर्कुलर बीम है क्या, रेक्टेंगुलर बीम पुट होगा क्या, टी तरीके का दिखेगा क्या, ट्रेपेजॉइडल दिखेगा, ऐसे करके तुम यहाँ पर डिफाइंट डिफरेंट पोर्शन तुम क्रिएट कर सकते हो। क्या ये आई सेक्शन दिखेगा, ठीक है। समझो कि हम लोग रेक्टेंगल ले रहे हैं। अब रेक्टेंगल में क्या दिया गया है, रेक्टेंगल में वाई डी एंड जेड डी पुट किया गया है। अब वाई डी और जेड डी क्या चीज है क्या नहीं है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। समझो कि ए इसको बीम बोल रहे हो, तो बीम का स्ट्रक्चर समझो कि ऐसे करके है। रेक्टेंगुलर पुट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। हम लोग क्या क्रिएट किए थे, हम लोग एक नोट के थ्रू दूसरा नोट का डिस्टेंस क्रिएट करके एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किए थे ऐसे करके। उसमें ए सेक्शन पुट नहीं हुआ है, कितना चौड़ाई है कितना डेप्थ है उसमें, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसके लिए वाई डी आएगा और जेड डी आएगा। तो वाई डी का मतलब, वाई डी का मतलब है इस हाइट को हम लोग वाई डी बोलते हैं इसको, इसका जो चौड़ाई है इसमें वाई डी आएगा, वाई डी डिफाइन होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें डिफाइन होगा जेड डी, जेड डी को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने के लिए इसको पुट करना होगा, ठीक है। अब उसमें डिफाइन होगा तो कौन से मटेरियल ऐड कर दो वो तुम चूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो कंक्रीट चूज से कंक्रीट मटेरियल ऐड होगा उसमें। अब कंक्रीट मटेरियल ऐड हो रहा है उसके बाद उसमें असाइन करना है। तो डिफाइन पहले करते हैं, समझो कि 0.4 0.3 सेक्शन उसमें डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करोगे तो क्या होगा, क्रिएशन हो चुका है। अब क्रिएशन हो चुका है, इसी को यहाँ पर क्या करना होगा, असाइन करना होगा। अब असाइन कैसे करते हैं, असाइन करने के लिए, असाइन करने के लिए इसको सिलेक्शन करना होगा। अब देखो असाइन करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड इसमें दिया गया, यूज कर्सर टू असाइन, असाइन टू व्यू, व्यू के तरीके से असाइन कर सकते हो। इसमें तुम व्यू को सिलेक्ट करोगे तब भी असाइन होगा क्योंकि एक ही बीम है, डिफरेंट 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 डायरेक्शन में बीम रहेगा तो डिफरेंट डायरेक्शन का बीम का सेक्शन अलग अलग होगा। समझो कि कॉलम का सेक्शन अलग है, बीम का सेक्शन अलग है, तो उसमें तुम असाइन विद व्यू से तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पर एक ही बीम है तो असाइन विद व्यू करके भी असाइन कर सकते हो, वो ऐड हो जाएगा। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, यूज टू कर्सर टू असाइन, कर्सर को तुम सिलेक्ट करके भी यहाँ पर यूज कर्सर करके भी असाइन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कर्सर देगा, किस में असाइन करना चाहते हो उसमें क्लिक करोगे तो असाइन हो जाएगा। असाइन टू एडिट लिस्ट मतलब पहले क्रिएशन हो चुका है, दूसरी तरीके से क्रिएशन करना चाहते हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर का क्या होगा, स्ट्रक्चर का एक लिस्ट देगा, मतलब सेक्शन का प्रॉपर्टीज उसमें सिलेक्ट हो चुका होगा, तो उसी को चेंजेस करके तुम एडिट करके लिस्ट कर सकते हो। नहीं तो एक और ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम, जो जो बीम सिलेक्टेड है उसको तुम असाइन कर सकते हो। ये तो सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे तुम सिलेक्ट कर सकते हो, बीम कर्सर से सिलेक्ट कर सकते हो, तो बीम कर्सर के सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उसी को असाइन कर दोगे तो असाइन हो जाएगा, समझो कि असाइन असाइन, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज इसमें ऐड हो चुका है। कैसे समझोगे कि वो प्रॉपर्टीज इसमें ऐड हो चुका है, तुम इसमें 3D व्यू भी देख सकते हो। उसके लिए कैसे 3D व्यू देखेंगे, इसके लिए 3D रेंडरिंग व्यू देते हैं, तो इसमें रेंडरिंग व्यू करके तुम 3D व्यू देख सकते हो उसका प्रॉपर्टीज के लिए। तुम यहाँ पर व्यू का सेक्शन में जाओगे, इसमें व्यू का सेक्शन में आएगा 3D रेंडरिंग, ठीक है, इसमें भी है। और जो बोले थे मेनू बार में क्या कर सकते हैं, मेनू बार में सब फंक्शन यहाँ पर दिया जाता है, कमांड बार दिया जाता है जिसका हम यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या है वो सेक्शन खुला हुआ है,
रखा है। तो तुम यहाँ से भी यूज कर सकते हो, मेनू बार के थ्रू भी यूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, तुम जो इस एक्सिस में उस बीम को क्रिएट किए थे वो यहाँ पर आ चुका है। पहले एक स्ट्रक्चर में क्या डिफाइन हुआ है, स्ट्रक्चर में उसका लेंथ डिफाइन हुआ है। कैसे? नोट, दो नोट को सिलेक्ट पुट किए थे, उसके बाद ऐड किए थे बीम का लिए, कहाँ पे बीम ऐड होगा, तो बीम के लिए जियोमेट्रिकल सेक्शन क्रिएट किए थे। उसके बाद उसके लिए जो जो प्रॉपर्टीज, जो जो सेक्शन उसमें क्रिएशन होगा, कंक्रीट का सेक्शन होगा कि स्टील का सेक्शन होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, असाइन करना होगा। तो असाइन करने के लिए दो डिफरेंट मेथड होता है। पहले उसको क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उसको असाइन करना पड़ता है। तो हम लोग क्रिएट किए डिफाइन सेक्शन के थ्रू, और उसके बाद असाइन किए असाइन सेक्शन के थ्रू। अब असाइन सेक्शन में क्रिएशन हो चुका है, उसके बाद क्या है, अपसाइड डाउन फॉलो करेंगे। तो अपसाइड डाउन में क्या बोला गया था, हम लोग स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर पुट किए थे, स्ट्रक्चर को डिफाइन किए कितना सेक्शन के लिए डेप्थ होगा, विड्थ होगा, तो ये आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, सपोर्ट सेक्शन, सपोर्ट देना पड़ेगा। तो कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट होता है। अब फिक्स सपोर्ट के लिए सपोर्ट में जाओगे, सपोर्ट में भी एक ही चीज है। सपोर्ट को क्या करना पड़ता है, सपोर्ट को उसमें लिए क्रिएट करना पड़ता है, एक प्रोसेस है क्रिएशन, उसके बाद उसके असाइन करना पड़ता है। तो क्रिएट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट इसमें ऑप्शन होगा। ठीक है। फिक्स सपोर्ट क्यों, फिक्स सपोर्ट इसलिए कि उसमें एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड, मतलब रोटेशनल, और इसके लिए जो फोर्स है तो वो क्या है, वो रिस्ट्रेन है, मतलब उस पॉइंट के लिए किसी भी डिस्प्लेसमेंट उसमें पॉसिबल नहीं है, तो उसमें फिक्स सपोर्ट दिया गया। तो फिक्स सपोर्ट ऐसे करके डिफाइन कर सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में यूज होता है। कौन से सपोर्ट के लिए क्या यूज होता है, कैसे पुट होगा, तो बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे, एक प्रोसेस से थ्रू समझिए। अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे डिफाइन होगा। तो समझो कि वो बीम, कैंटिलीवर बीम के लिए फिक्स सपोर्ट ऐड करना है। तो ऐड सब क्या करोगे, उसको क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करोगे, फिक्स सपोर्ट में क्लिक करना, तो इसमें दिखेगा क्या चीज है उसमें। तो उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे उसमें। तो ऐड हो चुका है। यहाँ पर भी दो चीज है, असाइन पहले क्या होता है, क्रिएशन होता है। इफ यू पुट इन दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू असाइन इट, you have to create it and then assign it. So how can we assign it here? We have to select which support we have to assign. Suppose there is a different support, so you can create and you can see from here. Okay, so select करो, select करने के बाद वही चीज आएगा कि असाइन विद व्यू। असाइन विद व्यू करोगे तो क्या होगा, सपोर्ट कहाँ पे क्रिएट होगा, जो जो नोट यहाँ पर दिया गया है उसी नोट के थ्रू वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक ही साइट में पुट करना है, इस साइट में पुट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज टू कर्सर टू असाइन कर सकते हैं, या तुम सिलेक्ट उस नोट को सिलेक्ट करके भी उसमें असाइन कर सकते हो। कैसे नोट को सिलेक्ट करेंगे, नोट के लिए क्या चूज करना पड़ेगा, उसी नोट को चूज करने के लिए नोट के लिए नोट कर्सर चूज करना पड़ेगा। नोट कर्सर के थ्रू इसको सिलेक्ट करो तो इसमें हो जाएगा। तो देखो सिलेक्ट हो चुका है, तो बोल रहा है असाइन टू सिलेक्टेड नोट। ठीक है। तुम व्यू से करोगे तो क्या होगा, व्यू से करोगे तो दो साइट में भी, दो साइट से उसके लिए जो जो सपोर्ट है वो दोनों साइड में ही सपोर्ट आ जाएगा। कर्सर से करोगे तो कर्सर के थ्रू तुम्हें डायरेक्शन देना पड़ता है, मतलब where you can put this support। तो असाइन करो तो जिसमें सिलेक्टेड है उसमें असाइन हो जाता है ऐसा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में क्या दिया गया है, इनपुट में लोड के लिए पुट किया गया है, कौन से लोड के लिए क्या पुट होगा इसमें। तो हमारे पास सिंपल एक लोड है जो यूडीएल है 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसमें क्या होगा, इसमें लोड के लिए लोड सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो लोड कैसे जाओगे, लोड के सेक्शन के लिए लोड कैसे डिफाइन करोगे इसमें, तो अपसाइड डाउन फॉलो करोगे। तो अपसाइड डाउन फॉलो करते हुए सपोर्ट के बाद ही लोड एंड डेफिनेशन आता है। लोड एंड डेफिनेशन का सेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। तो लोड एंड डेफिनेशन सेक्शन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर क्रिएशन करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। ठीक है,
और एक सेक्शन आता है डेफिनेशन, डिफाइन करना होता है कौन से लोड है, डेट लोड है क्या लाइफ लोड है, वो सेक्शन डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो समझो कि यूडीएल पुट करोगे, कैसे यूडीएल पुट करोगे, पहले उसको क्रिएट करो। तो एक यहाँ पर क्या है, लोड केस डिटेल्स बोला गया है, कौन से लोड इसमें पड़ रहा है वो लोड केस डिटेल्स के थ्रू तुम ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो ऐड करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, डेट लोड है क्या लाइफ लोड है, तुम यहाँ पर बोल सकते हो, यहाँ पर चॉइस करके बोल सकते हो। ठीक है, समझो कि लाइफ लोड क्या होता है, डेट लोड क्या होता है, जब स्ट्रक्चर पुट करेंगे तब देखेंगे। डेट लोड है जो समझो कि सेल्फ वेट है वॉल के लिए, समझो कि एक बिल्डिंग वहां पर है, बिल्डिंग के लिए जो पार्टीशन वॉल पड़ता है, जो मेन वॉल पड़ता है, और जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट है, ये सब डेट लोड में आता है। ठीक है, लाइफ लोड मतलब उसमें समझो कि जो तुम अगर जो ये है कंपोनेंट, मतलब समझो उसमें जो जो लाइफ लोड मतलब कंपोज लोड है, मतलब जो मूवेबल लोड है उसमें जो पुट हो रहा है, तो उसके लिए वो लाइफ लोड का सेक्शन डिपेंड होता है। उसके लिए तुम विंड लोड भी दे सकते हो, बिल्डिंग के लिए सिस्मिक लोड आएगा, मतलब अर्थक्वेक लोड आएगा तो अर्थक्वेक लोड भी आ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, समझो कि हम लोग चूज किए डेड लोड। ऐड करोगे तो आएगा, आप उसमें क्या डिफाइन करना होगा, क्या लोड है उसमें, तो ऐड करो। यहाँ पर क्या डिफाइन करना होगा, यूडीएल डिफाइन करना होगा। तो यूडीएल के लिए क्या डिफाइन है, यहाँ पर यूडीएल के लिए यहाँ पर मेंबर लोड दिया गया। ठीक है, अब मेंबर लोड के लिए यूनिफॉर्म फोर्स दिया गया है, यूनिफॉर्म मूवमेंट दिया गया है, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप फोर्स यहाँ पर दिया गया है जो इसमें अप्लाई हो सकता है। तो हमारा यूडीएल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, तो यहाँ पर तुम फोर्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है, 10 किलोमीटर पर मीटर। तो 10 किलोमीटर पर मीटर से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -10 बोलेंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि -10 क्यों बोलोगे, -10 इसलिए बोलोगे क्योंकि हम लोग पुट कर रहे डायरेक्शन, पुट कर रहे कहाँ पे, डायरेक्शन पुट कर रहे वाई जे जी वाई, ग्लोबल वाई, मतलब ग्लोबल वाई किसके लिए, ग्लोबल वाई इस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में पुट हो रहा है। अब वाई डायरेक्शन में पुट हो रहा है तो कहाँ से किस तरफ पुट हो रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन ऊपर से नीच तरफ है, ऊपर से नीच तरफ है, तो इसलिए हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, माइनस माइनस डायरेक्शन पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस डायरेक्शन इसमें डायरेक्शन दिया जाता है माइनस और प्लस से, ऊपर से नीचे तक नहीं जा रहा है लोड, लोड हमेशा ऊपर से नीचे तरफ पड़ता है, तो हम लोग माइनस से डिफाइन करें। ग्लोबल वाई, क्यों ग्लोबल वाई, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट, तो ग्लोबल वाई यूपर से नीचे, तो इसी में ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसमें जा रहा है। इसके लिए तुम D1 D2 D3 डिफाइन कर सकते हो, पर ये क्या है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हर तरीके से पड़ेगा, तो 10 करके ऐड कर देना तो आ जाएगा। अब देखो डिफाइन हो चुका है, डिफाइन हो जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, असाइन करेंगे इसमें से, तो असाइन कर सकते हो तुम, ये इसको बोल सकते हो असाइन। अब असाइन कैसे करते हैं, सिलेक्ट करके जो दिखाया गया था, जो प्रोसेस है सिंपल प्रोसेस, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको देखो, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि तुम सिर्फ क्रिएट किए हो, इसमें सिर्फ लोड डेफिनेशन में उसको क्रिएट किया गया है, उसको असाइन नहीं किया गया है। तो असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन करने के लिए इसको देना पड़ेगा किस के थ्रू तुम असाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो यूज कर्सर टू असाइन, तो असाइन करोगे तो आएगा कर्सर, तो कहाँ पे देना चाहते हो, तो असाइन करोगे तो दिखो डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नहीं तो तुम्हें सिलेक्शन करके भी किया जा सकता है उसको, बीम के लिए सिलेक्शन करोगे, जैसे बीम कर्सर दिया गया है, बीम कर्सर के थ्रू सिलेक्शन करके उसके लिए असाइन किया जा सकता है। अब ये सब क्या हुआ है, ये सब हमें क्या 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 पुट हुआ है, सिर्फ इनपुट पुट हुआ है, या स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किए हैं, जियोमेट्रिकल सेक्शन के थ्रू। फिर से आ रहे देखो, स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किए, हम लोग जियोमेट्री सेक्शन में आए हैं, डिस्टेंस दिए है 2 नोट का,
एक 0.00 सेक्शन में था और दूसरा एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो एक्स डायरेक्शन में 6.5। उसके बाद एक बीम एड बीम करके एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर पुट किया। अब स्ट्रक्चर में क्या है उसका प्रॉपर्टी सेक्शन डिफाइन करके उसको सपोर्ट और लोड पुट किए। ये सब क्या है, ये सब हमारा इनपुट सेक्शन है, ठीक है। अब इसी इनपुट सेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी इनपुट सेक्शन को इसमें देखो, इस तरफ से आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे तो ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। इस साइड से देखना चाहते हो तो इसको हम लोग इस व्यू सेक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऊपर से देखना चाहते हो तो फ्रॉम व्यू फ्रॉम वाई, तो ऐसे करके दिखेगा। ऊपर से देखोगे ये व्यू फ्रॉम वाई दिख रहा है। ये 3D स्ट्रक्चर में मतलब बिल्डिंग का जो सेक्शन है जब यूज करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जो पुट होता है उसको व्यू से कुछ सिलेक्ट करने के लिए व चेंजेस करने के लिए ये सब काम आता है। कैसे काम आता है, क्या चीज है, जब यूज करेंगे तब देखना, बहुत आसानी से तुम समझ पाओ। तो ये सब पुट हो चुका है, अब क्या करना है, आप इसके लिए एनालिसिस करना है, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस सेक्शन के लिए ये देखो, अपसाइड डाउन जनरल सेक्शन में हमें जियोमेट्रिकल सेक्शन में स्ट्रक्चर पुट किए थे, जनरल सेक्शन में प्रॉपर्टी सेट किया है, इसका बीम के लिए कौन से डेप्थ थे कौन से विड्थ थे इसमें पुट किया गया है। उसके बाद सपोर्ट ऐड किया गया है और लोड एंड डेफिनेशन पुट किया गया है, हो चुका है। और उसके बाद एनालिसिस करके तुम एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस में क्या दिया गया है, कौन से चीज के लिए एनालिसिस करना चाहते हो, कौन से समझो कि लोड डेटा जो चीज है उसके लिए एनालिसिस करना चाहते हो कि स्टैटिक चेक करके एनालिसिस करना चाहते हो, उसके लिए दिया गया है। नो प्रिंट मतलब कौन से चीज को उसको एनालिसिस करके प्रिंट आउट लेना चाहते हो, ठीक है। समझो कि ऑल चाहिए तो ऑल करके ऐड कर देना, तो वो क्या करेगा, वो परफॉर्म एनालिसिस में आ जाएगा। सब कुछ हो चुका है यहाँ पर, परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ऑल मतलब यहाँ पर ऐड करोगे तो वो एनालिसिस करने के लिए रेडी है, ठीक है। एनालिसिस कमेंट पुट हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें इसको यहाँ पर जाके एनालिसिस सेक्शन में जाने के बाद रन एज एनालिसिस करना होगा। मतलब अब तुम एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस कमेंट दे चुके हो किसके लिए एनालिसिस करना होगा, तो तुम वहाँ पर एनालिसिस सेक्शन के लिए ऐड कर दोगे तो फिनिश हो जाएगा, वो सेक्शन फिनिश है। और कुछ नहीं ऐड कर रहे हो तुम यहाँ पर। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें रन एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सेव है, सेव करके रन एनालिसिस करो। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से देखो, ठीक है। मतलब जो चीज इसमें आ रहा है वो वो क्या है, जीरो एरर है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वार्निंग आता है, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एरर फ्री होना चाहिए। क्यों एरर फ्री होना चाहिए, इसीलिए एरर फ्री होना चाहिए क्योंकि वो एनालिसिस करके क्या दे रहा है, एनालिसिस करके यहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट फोर्स स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एनालिसिस पोर्शन कर रहा है। अब एनालिसिस जो कर रहा है वो एनालिसिस ठीक ठाक से वो जो हमारा सेक्शन है वो ले पा रहा है कि नहीं, वो लोड ले पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर एरर आ जाएगा तो इसके लिए एरर क्या चीज है, इसके लिए एरर यही है कि वो स्ट्रक्चर वो लोड नहीं ले पा रहा है। वो लोड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो लोड के लिए जो लोड पुट कर रहे हो वो लोड वो स्ट्रक्चर बियरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरर आता है। समझो कि कोई पोर्शन छूट गया है, मतलब जुड़ा नहीं गया है, किसी की सेक्शन को क्रिएट कर रहे हो उसके लिए डिफाइन नहीं किए हो, सपोर्ट नहीं दे चुके हो, तो उसके लिए भी एरर आता है, ठीक है। तो वो अच्छी तरीके से देख के तुम्हें क्या करना होगा, पुट करना होगा। एक बार एरर आ जाएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें कोशिश करना होगा फिर से, नहीं तो फिर से क्रिएट करना होगा। एरर को सॉल्व कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें फिर से तुम क्रिएट करना होगा। नहीं तो इसमें क्या है, हमारे पास कोई एरर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जिसको साउंड प्रॉब्लम आ रहा है री एंटर करो, री एंटर। वॉइस प्रॉब्लम, विशाल विशाल री एंटर करो, देखो। और किसी को वॉइस देखो, सब जो जो सुन रहे हो, एवरीवन कैन हियर माय
हेयर मी प्रॉपरली। देखो तो एक बार चेक करो तो साउंड, नहीं तो सब लोग सुन पा रहे हो तो? या थैंक यू। ओके ओके। तो इसमें से तुम क्या कर सकते हो, इसमें से तुम देख सकते हो तुम्हारा फाइल, जो फाइल है व्यू आउटपुट फाइल करके देख सकते हो। टर्न करोगे तो फाइल दिखेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। अब इसमें रिजल्ट है अप्लाइड लोड का सेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोर्स कहाँ पे क्या पड़ रहा है क्या नहीं है वो तुम फाइंड आउट कर सकते हो इसमें से थ्रू। रिएक्शन के लिए रिएक्शन बोला गया है कहाँ से कहाँ क्या, इसको तुम क्या कर, मतलब एनालिसिस करना होगा, मतलब देखना नहीं है, मतलब एनालिसिस करके समझना है कैसे किस सिचुएशन में क्या काम में आ रहा है, कैसा फोर्स दिया गया है, कैसा फोर्स पड़ रहा है। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, इसको क्लोज करो। विजुअली देखना चाहते हो तो पोस्ट प्रोसेसिंग में चले जाना, पोस्ट प्रोसेसिंग सेक्शन। ठीक है। ये पोस्ट प्रोसेसिंग सेक्शन जो है ये सब कुछ सीखेंगे। फर्स्ट जो क्लास हो रहा है सिर्फ दिखाया जा रहा है क्या किया जा सकता है, ये सब कुछ धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। एक दिन में समझ नहीं पाओगे कि कौन से लिए क्या सेक्शन है क्या नहीं है क्या स्टेप है। ठीक है। तो हम लोग जब क्लास के थ्रू और भी डिस्कस करेंगे तो एक एक सेक्शन के लिए डिफाइन होगा। तो फर्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया जा रहा है। ठीक है। एक सिर्फ एक बीम के लिए ही बोला जा रहा है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग सेक्शन में क्या चीज है, पोस्ट प्रोसेसिंग सेक्शन में हम लोग उसके लिए जो लोड है उसको डिफाइन करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर वो आ जाएगा इसके लिए पोर्शन। अब देखना नोट के लिए तुम डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हो, रिएक्शन चेक कर सकते हो कौन से लिए क्या रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखना mz। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जो इसमें दे रहा है वो WL²/2, इसको डिफाइन करोगे तो ये आ जाएगा। y के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है y डायरेक्शन में वो कौन से क्या फोर्स आ रहा है वो डिफाइन होगा इसमें। और तुम क्या कर सकते हो, बीम के लिए भी देख सकते हो, बीम के लिए ग्राफ्स के थ्रू देख सकते हो। ठीक है। अब ग्राफ में देखना कि mz जो आ रहा है mz डायरेक्शन में, तो इसमें क्या आएगा, ट्रापेजोइडल का एक आएगा, इसमें एक ट्रायंगल आएगा Fy फोर्स में। ठीक है। फोर्स क्या है 65 किलोमीटर। ठीक है। Fx में क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा, फिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड सपोर्ट दिया गया है। तो ऐसे करके तुम इसको क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। एनिमेशन में भी देखते हैं, एनिमेशन में डिफ्लेक्शन करके अप्लाई करोगे तो देखो एनिमेशन दिखाया जा रहा है उस लोड के लिए क्या डिफ्लेक्शन आ सकता है। तुम उसको क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है। रिपोर्ट तुम जनरेट कर सकते हो इसके थ्रू, कौन से लिए क्या क्या रिपोर्ट चाहिए तुम्हें, ऐसे करके पीडीएफ करके रिपोर्ट जनरेट हो सकता है। पिक्चर को तुम ऐड करके भी उसमें से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, वो सब सीखेंगे। ठीक है। तो एक क्या चीज है, ये सिर्फ इनपुट के थ्रू आउटपुट आ चुका है। अब आउटपुट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, मल्टी मटेरियल डिजाइन करते हैं। तो मल्टी मटेरियल डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के लिए और भी तुम्हें जानना पड़ेगा कि क्या से, मतलब हाउ वी कैन डिजाइन इट थ्रू मल्टी मटेरियल, अप्लाइंग द मटेरियल, whether there is a steel material or there is a concrete material। तो क्या 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 उसके लिए प्रॉपर्टीज आता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐड कर क्यों ऐड करते हैं वहां पर, क्या चीज है हुआ उसके लिए, तो उसके लिए डिजाइन आता है। तो आउटपुट के थ्रू डिजाइन मटेरियल में स्टैक प्रो क्या करता है, फिर से एनालिसिस करता है वो डिजाइन रेडी है कि नहीं, उस तरीके से वो डिजाइन ले पा रहा है कि नहीं, जो डिजाइन के लिए जो जो प्रॉपर्टीज तुम दे रहे हो डिजाइन के थ्रू, तुम बिल्डिंग को क्रिएट करना चाहते हो या स्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहते हो, वो क्या करता है उसमें स्टैट प्रो क्या करता है बीच में फिर से एनालिसिस करता है। ठीक है।
वो एनालिसिस एरर फ्री आएगा तो तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी। देखो बेसिक को तुम लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं, देखो क्या किया जा सकता है इसमें। सिंपल सा बात है इसमें। तुम जो सॉफ्टवेयर को यूज करोगे किसी भी, समझो कि प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन, तुम एक डिजाइन कंपनी मतलब काम कर रहे हो, तो उसके लिए डिजाइन प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो उस प्रोजेक्ट में जो सेक्शन है उसके लिए मॉडलिंग पार्ट क्रिएट करना होगा। कैसे क्या चीज है उसमें होगा, उसके लिए मॉडलिंग करना होगा जो जियोमेट्रिकल सेक्शन से आता है। उसके बाद उसके लिए क्या करोगे, वो सब कुछ ले पा रहा है कि नहीं, लोड जो है उसके लिए वो जो जो सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो डिजाइनिंग के थ्रू, वो सेक्शन उसमें डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के बाद उसको लोड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्यों करेंगे, इसलिए एनालिसिस करेंगे कि वो जो सेक्शन है वो क्रिएट हो सकता है कि नहीं। एनालिसिस एरर फ्री आएगा तो हमें बोला जाएगा कि ये सेक्शन ठीक है। ठीक है, अब कैसे उसको सेक्शन के लिए डिफाइन करना होगा तो देखेंगे एक एक से। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, जियोमेट्री, मतलब सेक्शन को कैसे जियोमेट्री में क्रिएट करते हैं, कैसा सेक्शन जियोमेट्री में क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो वही से हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और सॉफ्टवेयर को तुम लोग इंस्टॉल करना, आप लोग सॉफ्टवेयर को क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। तो सॉफ्टवेयर का पार्ट इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है एक बार बोल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर के लिए लिंक दिया गया है, सब लोग लिंक पा चुके हो, सॉफ्टवेयर का लिंक दिया दिया गया था, सब लोग लिंक पा चुके तो। यस सर। ओके, तो उसी लिंक के थ्रू पहले समझ लेना, नहीं तो मतलब इंस्टॉल कर दोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, रन भी करेगा, पर वो क्रैक फाइल को जनरेट नहीं करता है। मतलब उसके लिए 14 डेज के बाद उसको लिए देखना फिर से वो बोलेगा कि लाइसेंस फेल। तो उसके लिए लाइसेंस चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो वहां पर सब कुछ दिखाया गया है, बोला गया है कि क्या क्या करो नहीं करो। तो सॉफ्टवेयर को जब ओपन करोगे, आप लिंक जो दिया गया है उसी लिंक को, ड्राइव का लिंक है तो ड्राइव के लिंक के लिए देखना कि परमिशन मांगेगा। तो परमिशन को मतलब रिक्वेस्ट भेजना, तो रिक्वेस्ट को अप्रूव हो जाने के बाद तुम्हें दे देगा सॉफ्टवेयर का लिंक। तो डाउनलोड कर देना, डाउनलोड करने से तुम्हारे इफ यू डाउनलोड already downloaded it, so it is look like this, Bentley stat to V8 type section plus crack. ओके, सो सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन को तुम रन करोगे, ये एप्लीकेशन को रन करोगे, या यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसके पास इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसके लिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जिसके पास ये वर्जन है, कम करो, मतलब जिसके पास जो वर्जन है उसके लिए है तो ठीक है, जिसके पास नहीं है उसके लिए बोल रहे हो कि कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें देखना एक रीडमी सेक्शन है, एप्लीकेशन को रानस इंस्टॉलेशन करके इंस्टॉल कर देना, ये रानस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना, और उसके बाद रीडमी सेक्शन में जाना। तो रीडमी सेक्शन में डिफाइन कर किया गया है कि कैसे तुम इसको मतलब क्रैक के थ्रू तुम इसको जनरेट कर सकते हो। तो एक बार वेट करो, इसको ओपन होने दो। मतलब एक फाइल दिया गया है, क्रैक बोल के एक फाइल दिया गया है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना जहां जहां चाह रहा है, बस सिंपल है। You cannot find it, रुको। ये रीडमी को अच्छी तरीके से पढ़ना वहां पर,
वहां पर बोला गया है कि कौन सी चीज है वहां पर, वो सब वहां पर एक एक करके फॉलो करोगे तो अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर पाओगे। हाँ, उसीलिए बोल रहे थे कि लिंक के थ्रू जो डाउनलोड करना चाहते हो उसके लिए ये करना होगा, मतलब वेट करना होगा, तुम्हें देगा वो लिंक के थ्रू। सपोज तुम ड्राइव में क्लिक करोगे तो ये ड्राइव आर्ट एंड कोलाबोरेशन के थ्रू उसमें लोड है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन मांगना पड़ेगा। तो परमिशन जब दोगे तो उसी के थ्रू वो इंस्टॉल होगा, मतलब यहाँ पर से परमिशन एक्सेप्ट किया जाएगा तो तुम्हारे लिए उसको वहाँ पर देखना डाउनलोड का ऑप्शन चला आएगा। तो डाउनलोड करोगे तो ऐसे करके फाइल आएगा तुम्हें, वहाँ पर इसी फाइल को वहाँ पर लोड किया गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को रन करोगे, रन करने के बाद रीडमी सेक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना। रीडमी सेक्शन में बोला गया है क्या कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी करना है, डायरेक्शन में दिखाया गया है। समझो कि बोला गया है कि ये ओपन हो नहीं रहा है यहाँ पर रीडमी सेक्शन में हमारा, तो समझो कि क्या कॉपी करना है, उसमें दिखाया जाएगा क्रैक फोल्डर में जाओ, उसके बाद क्रैक फोल्डर में जो फाइल है उसको कॉपी करो। तो देखो कि ऊपर में एक क्रैक फोल्डर है, ठीक है, तो क्रैक फोल्डर में एक बेंटली का एक फाइल मिलेगा, तो फाइल को कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना है वो सब रीडमी सेक्शन में दिया गया है। मतलब समझो कि कहाँ पे कौन सा फोल्डर में पेस्ट करना है वो सब पेस्ट करो तुम। पर पेस्ट करने के टाइम इसमें एक बात तो याद रखना कि तुम्हारा नेट ऑफ होना चाहिए, बस उसके बाद चलाना चल जाएगा। पर सिर्फ इस एप्लीकेशन के थ्रू रन करोगे तो सॉफ्टवेयर 14 डेज के बाद बंद हो जाएगा। तो उस रीडमी सेक्शन में वो दिया गया है सब। चलो एक एग्जांपल करते हैं, सिंपल सा एग्जाम स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं। सिर्फ बोलना कि क्या करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तुम लोग हेल्प करना मुझे कि क्या करना है। समझो कि मेरा स्ट्रक्चर ऐसा सेक्शन में है। वेट करो थोड़ा, ये सब कर रहा हूँ। समझो कि सिंपल सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल एकदम सिंपल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद डिफिकल्टीज आएगा तो उसी डिफिकल्टीज को सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल से करो तो समझ में आएगा अच्छी तरीके से। समझो कि ऐसे करके है स्ट्रक्चर हमारा, एक सेक्शन है, सेक्शन को ड्रॉ करने मतलब डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो समझो कि ऐसे करके एक सेक्शन है हमारा, बिल्डिंग का सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर, तो कैसे ऐड करेंगे। यार,
एक मिनट रुको, तो मेरा सपोज हैंग कर रहा है यहाँ पर, ये नहीं रहा। एक मिनट वेट करो। एक मिनट दो, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो ये हैंग कर रहा है बार बार। रुको एक मिनट, रुको दिखा दे रहा हूँ। 2 मिनट टाइम दो, मैं फिर से रिकनेक्ट कर रहा हूँ, तो वेट करो, मैं रिकनेक्ट करके दिखा देता हूँ बाकी सेक्शन।
देखो सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, तो मैं रिकनेक्ट कर चुका हूँ। तो हम लोग जो क्रिएट करेंगे, सिंपल एक सेक्शन क्रिएट करेंगे बिल्डिंग का। सो चले आओ, जो दिखाना चाहता हूँ था ओपन करते हैं। देखो स्क्रीन अवेलेबल है तो सबके पास। चैट में लिख सकते हो जिसका स्क्रीन दिख नहीं रहा है। समझो कि ऐसे करके सेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, समझो कि इसका लेंथ है, इस तरफ लेंथ है 5, उस तरफ लेंथ है 4 सेक्शन का। ठीक है, तो यही सेक्शन समझो कि एक रूम के लिए है। इसके ए सेक्शन में 2 रूम इधर में आएगा, मतलब ऐसे करके बढ़ेगा। 2 रूम इस तरफ लेंगे एक ही सेक्शन के लिए। ठीक है, और क्या करेंगे, और इस तरफ में 3 रूम डिफाइन करेंगे, 3 रूम डिफाइन करेंगे इस तरफ में। सेक्शन एक ही है, 3 2 करके है। ठीक है, 3 2 करके डिफाइन होगा, मतलब 3 रूम का सेक्शन इधर पे रहेगा, उधर पे 2 रूम का सेक्शन आएगा। और इसके लिए जो ए डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ए डायरेक्शन हमारे पास हम लोग बोल चुके थे उधर में ऊपर के लिए वाई, जो हमारा एक्सिस है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वाई इधर, इस डायरेक्शन में एक्स, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा जेड पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जेड जेड में सब लेंथ जो है 5 5 करके आ रहा है, और विथ में जो एक्स में जो लेंथ दिया गया है वो 4 4 करके डिफाइन हुआ है 2। तो ऐसे करके कैसे सेक्शन को डिफाइन करूंगा हमारा स्टेट प्रो के अंदर। तो एक के लिए डिफाइन हुआ था, तो मल्टीपल जब रहेगा तो कैसे करके सेक्शन डिफाइन होगा, कैसे हम लोग उसके थ्रू हम लोग एक स्ट्रक्चर पुट कर सकते हैं बिल्डिंग का। ठीक है, तो चले आओ जियोमेट्री सेक्शन में ओपन करो। ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, फिर से तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब न्यू प्रोजेक्ट में कैसे क्रिएट करोगे, क्या क्रिएट करोगे, दिखाया गया था। सॉफ्टवेयर जब ओपन होगा तुम न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करोगे। अब देखो CIT करके जो सिंपल सा जो स्ट्रक्चर लिए थे वो यहाँ पर आ चुका है। तुम उस फाइल को देखना चाहते हो, उस फाइल के थ्रू और भी कुछ काम करना चाहते हो तो रिसेंट फाइल में आता है, नहीं तो तुम वहाँ पर जो फोल्डर क्रिएट हुआ था फोल्डर के अंदर इस फाइल को पा जाओ। न्यू प्रोजेक्ट करोगे, 3D में क्रिएट होगा बिल्डिंग के लिए। नाम दोगे, नाम के साथ तुम काम भी कर सकते हो, उसमें रखना चाहते हो तो उसमें रखो, या लोकेशन चेंज करके तुम ब्राउज के लिए दे सकते हो, ब्राउज करके। सिंपल। तुम उसमें क्या कर सकते हो, इसी नाम के थ्रू फोल्डर डिफाइन कर सकते हो डेस्कटॉप में। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, CIT जहाँ पे है उसको सिर्फ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, वो फोल्डर डेस्कटॉप में क्रिएट हो जाएगा। और उसी के अंदर रखना चाहते हो तो ओके कर देना, तो उसी के CIT फोल्डर के अंदर ही रह जाएगा। पर CIT फोल्डर के अंदर रह जाएगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कौन से फोल्डर को क्या कॉपी करो। क्योंकि एक चीज याद रखना कि वहाँ पर जो सेक्शन डिफाइन होता है, समझो कि इसमें अंदर आ जाएगा तो नेक्स्ट करोगे तो स्पेस सिलेक्टेड है, नेक्स्ट सिलेक्टेड है, फिनिश करोगे तो वो वहाँ पर आ जाएगा, मतलब उसी फोल्डर के अंदर। अब उसी फोल्डर के अंदर सिर्फ वही फाइल आता है ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल आता है। इसको CIT को ओपन करोगे तो देखना डिफरेंट डिफरेंट फाइल है वहाँ पर।
तो कौन से फाइल को कॉपी करना है, क्या नहीं करना है देखना, हर एक तरीके का फाइल आ चुका है। ठीक है, तो जिसको भेजना है उसी को, समझो कि एक तुम्हारा, समझो कि तुम प्रोजेक्ट भेज रहे हो, तो कौन से फाइल को भेजोगे, तो देखना कि ये जो हरा कलर का जो सॉफ्टवेयर का साइन है इसी फाइल को भेजो। ठीक है, तो कौन से लिए कौन सी फाइल में क्या आता है, तो यहाँ पर देखना ये ऐसे करके, तो एक ही फोल्डर में क्रिएट करोगे तो ये एक मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। तुम फाइल को समझो कि एक में तुम 10-11 फाइल पुट कर चुके, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अलग मैं रेफर करूंगा कि अलग अलग करके करना। एक जन बोलो कि क्या, कहाँ से शुरू करूं, क्रॉस कर चुका हूँ। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल सेक्शन में क्लिक है, तो जियोमेट्री सेक्शन में ग्रिड के थ्रू यूज नहीं करेगा सिंपल में। तो पहले क्या करते हैं, पहले फास्ट नोट को क्रिएट करते हैं। अब फास्ट नोट कहाँ पे होगा, फास्ट नोट 00 सेक्शन के थ्रू ही क्रिएट करना। ठीक है, क्या होता है, आसानी होता है। तो 0 0 फास्ट नोट आ चुका है। आप हर एक बार में कॉपी पेस्ट करके नहीं करेंगे। अब देखो सिंपल तरीका क्या हो सकता है, सिंपल से कैसे हम लोग एक ही बारी में बिल्ड कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक ही बारी में बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे करते हो, इसी के थ्रू ही काम करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, नोट है, तो नोट को ही सिलेक्ट करते हैं। अब नोट को सिलेक्ट करने के लिए नोट कर्सर दिया गया है, सिलेक्शन के लिए सब प्रोसेस यहाँ पर है। सिलेक्शन जो जो सिलेक्शन करना है उसके लिए सब प्रोसेस यहाँ पर है। नोट कर्सर के थ्रू नोट को ही सिलेक्ट करते हैं, तो नोट को सिलेक्ट करो। नोट को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके एक डायरेक्शन में देना, उसको ऐड करना, तब दूसरे डायरेक्शन में दूसरा डायरेक्शन, ऐसे करके नहीं करते। क्या करोगे, डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे, डायरेक्ट चले जाओगे ट्रांजिशन रिपीट सेक्शन। ट्रांजिशन रिपीट मतलब कॉपी को ही पेस्ट बार बार तुम कर सकते हो यहाँ पर ट्रांजिशन रिपीट थ्रू। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन रिपीट बोला जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन रिपीट। अब ट्रांजिशन रिपीट सेक्शन के थ्रू एक सेक्शन है जिसके थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं किस डायरेक्शन में क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पहले जो किए थे, पहले क्या किए थे, पहले उसको कॉपी करके पेस्ट किए थे। पेस्ट करने के थ्रू तो क्रिएट नहीं हुआ था, तो उसके ऐड किए थे, बीम का सेक्शन, ऐड बीम का सेक्शन वहां पर ऐड किए थे, जियोमेट्रिकल सेक्शन। नहीं कि उसको प्रॉपर्टीज आ चुका है, उसका क्या लेंथ है, क्या पुट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, जियोमेट्रिकल सेक्शन है हो रहा है, किसके थ्रू, ये जो ग्राफ सेक्शन है, जो जी वाई बोला जाता है, जी एक्स जी वाई जी जेड, मतलब तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके थ्रू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कैसे हमें जियोमेट्रिकल सेक्शन हो सकता है वहां पर। अब वहां पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को ऐड करना पड़ेगा उसके बाद। तो देखो, ये जो ट्रांजिशन रिपीट सेक्शन है, ट्रांजिशन रिपीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन रिपीट किस डायरेक्शन में क्रिएट करना है। ठीक है, समझो कि हमें क्या क्रिएशन करना है, हमें क्रिएशन करना है इस डायरेक्शन का पार्ट, इस डायरेक्शन का पार्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन दिया गया है, 4 4 करके डिफाइन हुआ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में अब देखो नंबर ऑफ स्टेप तुम डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। तो नंबर ऑफ स्टेप क्या है, नंबर ऑफ स्टेप 2 है। 2 सेक्शन आएगा इस तरफ, 2 सेक्शन, 2 आ चुका है। अब 2 आ चुका है तो क्या करोगे, क्या क्या दिया गया है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर 5 5 करके डिफॉल्ट में दिया गया है, 5 मीटर करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मीटर, तो हमारा क्या है 4 मीटर, तो 4। ठीक है, अब 4 करके ऐड कर दोगे तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा, किसके लिए, 2 सेक्शन के लिए। यहाँ पर एक नोट आएगा, यहाँ पर एक नोट आएगा, या इस तरफ से एक नोट आएगा इसमें। तो हमें क्या करना है, वहां पर बीम का सेक्शन में ऐड करना है, तो हमें क्या करोगे, हम लोग यहाँ पर लिंक अप स्टेप कर देंगे, यहाँ पर लिंक स्टेप। तो एक बारी में क्या होता है, एक की बारी में वहां पर क्रिएशन हो जाता है। कॉपी करोगे मतलब ओके करोगे तो देखना कि उस डायरेक्शन में क्रिएट हो चुका है, एक ही बारी में क्रिएट हो चुका है। कैसे, ट्रांजिशन रिपीट के थ्रू। अब ट्रांजिशन रिपीट आ चुका है तो तुम फिर से इसमें इस तरफ से क्रिएट करके फिर से उस तरफ से क्रिएट करके ऐसे करके करोगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बीम को ट्रांजिशन रिपीट में फेल देंगे। मतलब आप नोट के थ्रू नहीं करेंगे, बीम आ चुका है तो इसी बीम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बीम कर्सर के थ्रू कंट्रोल दबाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, इसको ट्रांजिशन रिपीट में करोगे। अब ट्रांजिशन रिपीट में क्या चाहिए, सेक्शन चाहिए, घर का सेक्शन। ऑटोमेटिकली सेव कर लिए ऑप्शन आता है, उसको ASES कर देना, वो चला जाएगा। तो घर का सेक्शन आएगा, डिफाइन हो चुका है, क्या डिफाइन हो चुका है, 5
मीटर लेंथ है इसमें, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में देना पड़ेगा, पहले डायरेक्शन सिलेक्ट करो, तो बोलो कौन से डायरेक्शन में जाओगे। इस तरफ में क्रिएट करोगे तो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे। अक्षय बोल रहा है कि जेड, या राइट, अनम्यूट करके बोलो तो सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। जेड, तो जेड आ चुका है। अब जेड के लिए क्या करोगे, जेड आ चुका है तो क्या करोगे, सेक्शन को डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा ए वाला सेक्शन के लिए, 3 नंबर ऑफ स्टेप डिफाइन करोगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 डिफाइन करते हैं। 3 कितना बोला गया है, 5 दिया गया है तो 5, ठीक है। आप लिंक अप करोगे, लिंक अप स्टेप कर दोगे, ओके करोगे, आ चुका है एक ही बारी में, वो क्या हो चुका है, आ गया है। लिंक अप करके देना, लिंक अप करके आ जाएगा। अब समझो कि उसके लिए हाइट देना है, ठीक है, एक प्लिंथ के लिए हाइट देते हैं और उसके लिए फ्लोर के लिए हाइट देते हैं। तो पूरा के लिए सिलेक्शन करो, इसमें नहीं, सिलेक्शन सिलेक्शन कर सके तू, ठीक है। अब देखो व्यू को तुम ऊपर से देखोगे तो ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। अब साइड से देखोगे तो एक ही करके दिखेगा, उस साइड से देखोगे तो एक ही, ठीक है। तो ऐसे करके, क्योंकि 3D का स्ट्रक्चर पुट नहीं हुआ है, सिर्फ एक्स जेड में हम लोग कम कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करोगे, इसके लिए हाइट दोगे तो पूरा के लिए सेक्शन को सिलेक्शन करो और उसके बाद ट्रांजिशन रिपीट में चले जाओ। ट्रांजिशन रिपीट में जाओगे तो प्लिंथ के लिए एक हाइट पुट कर सकते हो, उसके बाद फ्लोर के लिए एक हाइट पुट कर सकते हो, ठीक है। समझो कि प्लिंथ के लिए एक हाइट पुट करते हैं, समझो कि 1.5, तो समझो 1 2 3 जितना तुम फ्लोर ले सकते हो। अब फर्स्ट फ्लोर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं 1.5 मीटर के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, और फ्लोर कितना मीटर रहता है, 3 मीटर, तो 3 मीटर करके डिफाइन कर सकते हो। तो ठीक है, अब लिंक अप कर दोगे तो लिंक अप हो जाएगा उसके साथ, तो उसका लिंक अप, ओके। अब देखो किस डायरेक्शन में आया है, एक्स डायरेक्शन में जा चुका है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सिलेक्ट था। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें डायरेक्शन सिलेक्ट करना होगा। डायरेक्शन नहीं सिलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा, मतलब फास्ट में क्या करो, फास्ट में ही डायरेक्शन सिलेक्ट कर दो, ना कि इसको पुट करके डायरेक्शन करो। फास्ट में डायरेक्शन पुट करो तो तुम्हें क्या करना है, तो कौन सा डायरेक्शन में पुट करोगे, एक्स डायरेक्शन में आ रहा था तो इसी डायरेक्शन में रिपीट दे रहा है, तो हमें हाइट देना है। हाइट कौन सा डायरेक्शन में आएगा, इसके लिए बोलो डायरेक्शन की क्या चूज करोगे, जेड, तो जेड के लिए चूज करो। जेड डायरेक्शन में के बाद क्या करो, तुम डिफाइन करो कितना कितना लेना है, कितना कितना फ्लोर लेना है, कितना डिफाइन होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 एक प्लेन के लिए हाइट दे रहे थे, उसके बाद 3 मीटर करके डिफाइन कर। अब लिंक अप स्टेप, अब लिंक अप स्टेप करोगे तो हर एक के साथ हर एक जुड़ जाएगा, तो ओके करो, तो आ चुका है। अब देखो नीचे के लिए जो सेक्शन डिफाइन हुआ है, वो सेक्शन के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इस सेक्शन में बीम नहीं रहता है, नीचे में एकदम नीचे में बीम नहीं ऐड करते हो, इसके लिए सपोर्ट ऐड होता है। तो बीम सेक्शन को जो सिलेक्शन हो रहा था उसको लिए डिलीट कर हो चुका है। अब इसके लिए क्या करोगे, नेक्स्ट सेक्शन में क्या बोला गया था, नेक्स्ट सेक्शन में लिए देखोगे, देखो 3D रेंडरिंग करोगे तो प्रॉपर्टीज नहीं ऐड हुआ है, सिर्फ जियोमेट्रिकल सेक्शन ऐड हुआ है। उसके लिए क्या एक्स डी है, सॉरी वाई डी है, जेड डी है, वो सब वहां पर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब समझो के लिए बीम के लिए एक है, कॉलम के लिए अलग 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 पुट करना है, ठीक है। तो कैसे करके पुट करेंगे हम लोग, पुट करने के लिए हम क्या डिफाइन होगा, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, उसके बाद जनरल में है, जनरल में प्रॉपर्टीज में डिफाइन करेंगे, ठीक है। समझो कि बीम के लिए पहले प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हो, कंक्रीट बीम के लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हो, समझो कि 0.3 करके 0.4 सेक्शन 0.3 सेक्शन में ऊपर ऐड कर रहे हो। जिस सेक्शन ऐड करोगे उसी सेक्शन के थ्रू वो कैलकुलेट होगा। ये क्या है, ये तुम्हारा कॉलम का सेक्शन है, ठीक है। समझो कि 0.3 बीम का सेक्शन, तो बीम के सेक्शन ऐड कर रहे हो। आप कैसे डिफाइन करोगे, एक एक करके कैसे पुट करोगे यहाँ पर, मतलब पुट कैसे करोगे कॉलम का सेक्शन और डिफाइन का सेक्शन।
मतलब बीम का सेक्शन और कॉलम का सेक्शन कैसे अलग करोगे। तो देखो यहाँ पर हर एक कॉलम के थ्रू बैठाना पड़ेगा ये कॉलम का सेक्शन, और डिफाइंड डिफाइंड सेक्शन होगा तो डिफाइंड डिफाइंड सेक्शन को सिलेक्ट करके बैठाना पड़ेगा। तो सिलेक्शन कैसे करते, उसको बैठाते कहा है और असाइन कैसे करते। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर डिफाइन हो चुका है, मतलब कौन से प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऐड करना है उसको यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब क्या करना है, अब उसके लिए मतलब हमें यहाँ पर ऐड करना है यहाँ पर। तो ऐड कैसे करोगे, इसके लिए अब एक एक करके कर्सर के थ्रू ऐड नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, मतलब इसमें सिलेक्ट होना चाहिए उसके बाद ये आएगा। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम मतलब व्यू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम में भी बैठ जाएगा, तुम्हारा बीम का सेक्शन के लिए भी ये सब बैठ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सेक्शन में जाते, ठीक है। सिलेक्ट सेक्शन में जाने के बाद समझो कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए क्या बोला गया था, कॉलम के लिए बैठेगा। तो कॉलम के लिए बैठने के लिए बीम पैरेलल टू कौन से एक्सिस को सिलेक्ट करोगे, इसमें कॉलम के लिए सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट ऑप्शन में जाओगे, सिलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद क्या सिलेक्ट करोगे, कॉलम का सेक्शन सिलेक्ट करोगे। तो कॉलम सेक्शन, सिर्फ कॉलम सेक्शन में सिलेक्ट करने के लिए बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन का प्लेन, वाई डायरेक्शन का प्लेन और जेड डायरेक्शन का प्लेन, कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, वाई करेंगे या। तो वाई क्या है, वाई यहाँ पर हाइट है, तो कॉलम के लिए वाई सिलेक्टेड करेंगे तो हर एक कॉलम को सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्ट सेक्शन के थ्रू। अब तुम देखो वो सिलेक्ट हो चुका है, तो क्या आ चुका है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम। अब तुम असाइन कर दोगे, असाइन हो जाएगा उसमें। अब दूसरे सेक्शन के लिए भी करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो, बीम पैरेलल करो। अब बोलो क्या क्या सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, सिर्फ बीम का सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए वाई नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कॉलम का सेक्शन है यहाँ पर। तो एक्स सिलेक्शन करेंगे, तो एक्स अब वाई के लिए भी चाहिए, सिर्फ एक्स दबाने से नहीं होगा, वाई मतलब जेड को दबाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जेड, जेड प्रॉपर्टीज यहाँ पर असाइन हो चुका है, तो असाइन करो, असाइन हो जाएगा। रेंडरिंग में जाओ तो प्रॉपर्टीज उसमें सब दिखेगा। अब ये क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है, अब तुम्हें डिफिकल्ट स्ट्रक्चर भी फेस करना होगा। डिफिकल्ट स्ट्रक्चर कैसे फेस करते हैं उस हम लोग देखेंगे। एक सिंपल एक आइडिया है कैसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। हर वक्त ट्रांजिशन रिपीट का ही इस्तेमाल करने का कोशिश करो, कॉपी पेस्ट करते जाओगे, कॉपी पेस्ट करते जाओगे तो टाइम बहुत लगता है। अब क्या देना है, सपोर्ट ऐड करना होगा, फिक्स सपोर्ट ऐड करना होगा नीचे में। तो व्यू के लिए यूज करेंगे हम लोग, पहले क्रिएट करो सपोर्ट को, क्रिएट फिक्स सपोर्ट ऐड। अब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे, हर एक को सिलेक्ट करते 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 उसके बाद असाइन करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड में। तो हर एक नीचे का नोड का जो सिलेक्शन होना है कैसे सिलेक्शन करेंगे, वो हम लोग व्यू के तरीके से यूज करके सिलेक्ट करेंगे। अब व्यू प्लस जेड मतलब इस तरफ से देखोगे तो ऐसे करके दिखेगा। तो नीचे के लिए पॉइंट नोट कर्सर को सिलेक्ट करके, सिर्फ नोट कर्सर को सिलेक्ट करोगे तो व्यू से अब इस साइड के थ्रू सिलेक्ट हुआ है, मतलब हर एक पैरेलल में जो नोट है वो सिलेक्ट हो चुका है। समझो कि इस व्यू के थ्रू हम लोग बीम कर्सर के थ्रू इस बीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इस बीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखो व्यू के लिए आइसोमेट्रिक व्यू के जाओ, सब व्यू के थ्रू सिलेक्ट हो चुका है। तो उसी नोट के थ्रू इसको सपोर्ट असाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू के थ्रू हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर व्यू है, कौन से तरीके से कौन से व्यू मिलेगा, तुम यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हो, नहीं तो जो हरा वाला मतलब जो येलो कलर है, येलो कलर जिस साइड में है उसी साइड का लिए व्यू देता है वो। जैसे कि समझो ये आइसोमेट्रिक व्यू है तो ऐसे करके दिखेगा, ऊपर से देखना चाहते हो तो ये जो ऊपर के लिए व्यू है यहाँ पर, मतलब प्लस व्यू फ्रॉम प्लस वाई एक्सिस दिया गया। तो इसके लिए व्यू यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो नोट कर्सर को सिलेक्ट करो, नोट के लिए सिलेक्ट हो चुका है। अब तुम क्या करो, असाइन कर दो उसको।
घुमा के देख लेना कि आया कि नहीं। तो असाइन करोगे तो असाइन हो जाएगा फिक्स अब। उसके बाद डिफरेंट लोड को ऐड करना होगा, क्या लोड है क्या नहीं है ये सब देखेंगे। पहले जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से सीखेंगे, उसके बाद एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे, डिफरेंट लोड डिफरेंट सपोर्ट पुट करके एक एक स्ट्रक्चर के। तो ग्रुप